Today we are going to talk about industrialization, and industrialization is an important topic, but there is no as such question that you can expect from this topic. ये आपको इसलिए पता होना चाहिए because you people, if you people know about industrialization, then you people will be able enough to incorporate the development that actually was there gradually in United States of America. So this is how this topic is actually important. So let's just start from industrialization. Just hold on for a moment, please. Let's just begin. Okay, so let me just start from introduction. Basically, the thing is that there were many untapped resources in United States of America. As we talked about historical perspective, as we talked about the history of United States of America, since the land discovered, we saw that there were many resources that were there in America, and basically the resources were untapped, and it took a lot of years to just make apt use of those resources. And amidst the situation, colonization was also there. So this is how the overall economy, and you can say the overall structure of United States of America, was dependent on resources, but those resources were actually untapped, right? And then after invention of machinery, it was discovered, machinery was discovered, and all the task that was actually manual, that shifted to machinery, and it become really easier. As I told you in the last lecture, that slavery was actually in demand right after invention of cotton gin by Ellie Whitney. So invention of cotton gin by Ellie Whitney is also a kind of machine. So this is how United States of America was making progress at that time. Since we are talking about industrialization, since we are talking about the overall progress and prosperity in America, so this is how we will be correlating the events from the past as well. Then comes innovations. You know that with the passage of time, there were certain innovations that were going on simultaneously. Many people were making progress. Many people were innovating new things in America. And this actually contributed a lot in the development of industry. Then scientific inventions were also there, and many of the scientific inventions were made by the Americans. So in 1844, telegram was there, and it made industry and connections easier. As you people know that it takes a lot of time, it takes a lot of hassle to send a letter from one place to another if you have no source of communication proper. ठीक है, अगर आपके पास proper source of communication नहीं है, so you people will be facing a lot of difficulty in order to send a message, or in order to have communication with the other party with whom you are doing business, right? So invention of telegram made it easier for people to have communication. So in 1844, telegram made industry and connections easier, and then electricity was also invented by that time. And you people know that initially it was manual, and then when things and when industry got shifted to machinery, then electricity played a very crucial role, or electricity played a very important role in this regard. Then comes railroads. So at that time, railroads were actually not there. Please wait. Okay, so railroads were actually not there, and people had to travel. People had to travel long distances. People had to, जैसे हम लोग कहते हैं कि हवाई जहाज से जो सफर है वो छोटा हो गया. Like people had to, it took so many days to people to travel from one place to another. But right after invention of all these kind of things, like railroads and airplane and all these kind of stuff, the connections were easier, the communication was easier, and people were actually not facing as such difficulty if they had to travel from one place to another for business purpose. ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो भी उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ती थी. प्लीज वेट, अजान टाइम है. इलेक्ट्रिसिटी, रेल रोड्स, वाटर चैनल्स, कि समुद्री सफर आप लोगों का. इनफैक्ट मैं करंट अफेयर्स का बना रही थी स्लाइड्स आप लोगों की, जो सेशन नया स्टार्ट होने लगा है करंट अफेयर्स का.
तो आई वॉज मेकिंग नोट्स फॉर यू पीपल और स्लाइड्स फॉर यू पीपल ऑन ब्लू इकोनॉमी। तो वहां पर आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि किस तरह से वाटर चैनल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज 94% ऑफ द ट्रेड all over the world happens through water channels. So water channels are extremely important if you want to have a smooth trade, right? अगर आप वही चीज बाय रोड भेज रहे हो तो दैट इज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फर्स्ट। एंड सेकेंडली जब टाइम ज्यादा होगा तो उसमें जो पेरिशेबल चीजें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपकी जो अगर आप बाय एयर करते हो तो दैट इज कॉस्टली। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल इन ऑर्डर टू हैव अ ट्रेड इज वाटर चैनल, राइट? So this is the very reason that water channel played an important role in overall economic growth of United States of America. Then लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने लिखा है कि रेल रोड्स एंड टेक्नोलॉजी actually played an important role in developing United States of America economically. Next, we have impacts of industrialization. अब obviously अमेरिका के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है तो उसके impacts क्या आएंगे। अब उसके impacts की बात करते हैं। ये मैंने कुछ impacts आप लोगों के लिए लिखे हैं और इनको अब हम लोग टर्न बाय टर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज गिल्डेड एज। गिल्डेड एज आप कह सकते हैं, अगर मैं इसको सादा लफ्जों में आप लोगों के लिए बयान करूं तो इसको हम कहते हैं नौ दौलतिये जो होते हैं। जो नौ दौलतिये मतलब जिनके पास नया नया पैसा आता है। यू पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जो लोग अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं, अच्छी फैमिली से होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अमीर कबीर घरानों से होते हैं, देयर फोर फादर्स वर एक्चुअली वेल ऑफ, तो वो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज हु हैव जस्ट सीन मनी। तो वो चीजें डिफरेंट होती हैं उन लोगों की, राइट? सो गिल्डेड एज वाज देयर, पीपल वर enjoying money for the very first time, and there was a race of money all across America. People were just in a hustle to earn as much money as they can, and then there was race of show off as well, right? अगर आप अच्छे घरों की बात करें, अच्छे स्टैंडर्ड वाले लोगों की बात करें तो दे पीपल हैव नो एज सच चार्म टू शो ऑफ, बट पीपल हु हैव जस्ट अर्नड मनी और हु हैव जस्ट सीन ऑल द लग्जरीज एंड all the charms and all this kind of stuff, they people are actually behind show off. Then रेस फॉर एंटीक्स, लाइक नवादरात जमा करने का शौक लोगों के अंदर पैदा हुआ, और ये एंटीक्स का शौक हमेशा बहुत हाई फाई क्लास के अंदर पाया जाता है। अब एक इंसान जिसने कमाना ही $2 से $3 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या लगे एंटीक से और उसको इन चीजों से क्या लगे, लाइक इफ ही बिलोंग्स टू लेबर क्लास तो उसका तो एंटीक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो दिस इज हाउ अ गिल्डेड एज वाज देयर, एंड दिस रेस टू अर्न मनी एक्चुअली प्रॉम्प्टेड पीपल टू गो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड हैं, इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, उनका क्या है कि वो लोग ऑटोमेटिकली जब अर्न कर रहे हैं तो वो नौ दौलतिये बन गए हैं, राइट? और जो लोग ये सब देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, दे पीपल आर एक्चुअली बिहाइंड अर्निंग मनी। सो रेस फॉर ऑटोमोबाइल्स वाज आल्सो देयर, पीपल वर ये भी अमीरों के शौक हैं। अक्सर शौक इस तरह के होते हैं ना, कहते हैं उम्रा के शौक हैं, ये हम लोग आम लोग नहीं कर सकते पूरे, जैसे पोलो खेलना, horse riding, changing automobiles all the time, like right after 6 months or 1 year, having antiques. So these are the things that were actually there at that time, and this is the impact of industrialization. जो भी point मैं आप लोगों को पढ़ा रही होंगी, जो भी point हम लोग discuss कर रहे होंगे, just bear it in your mind that we are talking about impacts of industrialization. So this question can be expected, ये question आप लोगों को आ सकता है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या आपको ना एक इस पर्सपेक्टिव में भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि रेल रोड्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कुछ लिंक करके ना वाटर चैनल्स या कोई ऐसा वर्ड यूज करेगा विच विल मेक यू क्लियर दैट एग्जामिनर इज एक्चुअली आस्किंग यू टू डिस्क्राइब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डिटेल. सो इफ दैट पर्सन आस्क्स you to describe industrialization in detail, so very first time you will be just giving a kind of heading of introduction, and then you will be explaining within 1 or 2 pages all the crux of the situation, and then you will be having a kind of impacts of industrialization, and then turn by turn आप उनको जो है explain कर रहे होंगे. So the very first one is your gilded age, then comes consumerism. कंज्यूमरिज्म अगेन कोई चीज कि जब एक इंसान को नई चीज खरीदने का शौक हुआ है तो ऑटोमेटिकली उससे सोसाइटी के अंदर क्या होता है
कि पैसा रिवॉल्व करता है। पैसा जब रिवॉल्व करता है तो लोगों के अंदर जो है वो और ज्यादा उस चीज की ख्वाहिश पैदा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, राइट। अगर एक ऑटोमोबाइल 5 लाख का है और वो नेक्स्ट उससे वाला जो लेना है उन्होंने वो 8 लाख का है, तो इट विल डेफिनेटली प्रॉम्प्ट दैट पर्सन टू अर्न मोर मनी in order to fulfill the desire that he has for that automobile, right? So buying new editions was there, buying new models was there. So this kind of stuff was there, and this actually gave impetus to consumerism, and this is again an impact of industrialization. Then we have rural urban migration. You people must have an idea that if there is industry, if there is a kind of opportunity for jobs, if there is employment over there, then people must be behind to achieve that particular opportunity that is there. So massive level migration was seen in United States of America. This is again an impact. Then this increased the strength of labor also. इस चीज ने क्या किया, इसने लेबर की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी। ऑब्वियसली जब एक इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेंट्स जो होंगे वो 10 होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, मशीनरी जल्दी काम करेगी, लोग जल्दी काम करेंगे, वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वो जब इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उनको लेबर ज्यादा चाहिए होने लग जाएगी। जब लेबर ज्यादा चाहिए होने लग जाएगी तो पीपल विल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, राइट, in search of better opportunities. You know that so many industries are in urban areas, so people living in rural areas actually had the desire to move to urban areas. Then the more the labor available, the more the growth of industry, as I have already explained this point to you. So this is again an impact of industrialization. Then we have unplanned growth of cities. Obviously when there are many people in urban areas, then unplanned growth of industries, cities might be seen. कैसे? a large number of cities and housing schemes were there. ज्यादा से ज्यादा घर आबाद होना शुरू हो गए। यू पीपल मस्ट हैव नोटिस्ड कि पहले लोग देहातों में रहते थे, पहले लोग एग्रेरियन बैकग्राउंड से जुड़े होते थे, पहले लोगों के पास देहातों में करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज होती थी, तो उनको शहरों का रुख उस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पुराने जमानों में जो लोग बहुत कोई हाई फाई एजुकेशन के लिए जाते थे तो कहते थे शहर से पढ़ के आया है, शहर गया है पढ़ने के लिए। तो अब तो ये बहुत कॉमन चीज हो गई है। लाइक पीपल मूव टू अर्बन एरियाज इफ दे हैव मनी, तो उनके लिए बहुत आसान होता है शिफ्ट होना अर्बन एरियाज की तरफ। तो इस चीज की वजह से क्या है कि आपने नोटिस किया होगा, अपने इलाकों में भी नोटिस किया होगा, इफ यू पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, तो यहाँ पर उस तरह से सिटीज जो हैं ये जिसमें भी आप लोग रह रहे हैं वो इस तरह से ग्रो नहीं हुई नहीं थी जिस तरह से अब हो गई हैं। आप लोग बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज के नाम सुनते हैं, आप लोग बहुत कुछ सुनते हैं। पहले क्या होता था, 3-4 होती थी जस्ट, और उसके अलावा लोग जो है वो ज्यादातर देहातों में रहना पसंद करते थे, बिकॉज लोगों को लगता था कि ये एक जो है आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल नहीं है, और ये आपकी जो है ओवरऑल आपकी वेल बीइंग के लिए एक आपका जो देहाती सेटअप है दैट इज बेटर। बट नाउ पीपल आर ऑफ द व्यू कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए अर्बन सेटअप बहुत ज्यादा बेहतर है। व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, business, so many things are there, so people prefer to move to urban areas. Similar is the case here. When United States of America was on its way towards industrial growth, then a large number of cities and housing schemes were there. People had more opportunities to move to cities. Obviously if there is labor required, people will definitely prefer to move from rural to urban areas. Then because of industrialization, people move to cities. उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इमर्जेंस ऑफ शेंटी टाउन्स। शेंटी टाउन्स कहते हैं जो मैं आपको क्या कहूँ, कस्बे नहीं होते, लाइक जो डेवलप नहीं होते, बट जहां पर लोग कुछ कैंप्स लगा कर रह रहे होते हैं, झुकियां बनाकर रह रहे होते हैं, जस्ट फॉर जस्ट एज अ कंपनसेशन, राइट। तो आप उसको शेंटी टाउन्स कहते हैं, जहां पर डिलेपिडेटेड किस्म के आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, घर मिलेंगे, विच आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। तो उस तरह के जो बैकवर्ड किस्म के एरियाज थे वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लग गए। So this is how I have made the heading emergence of shanty towns for you. Near industries and factories, people started residing. Obviously, अब वो जब आए हैं urban areas में, तो वो कोई बहुत अमीर कबीर तबका नहीं है. Obviously, they had to reside. So this initiated the concept of shanty towns in America. क्या हुआ कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के पास लोगों ने अपनी आबादी शुरू कर दी और अपने घर शहर बनाने शुरू कर दिए। अगर आप लोग लाहौर से हैं ना, तो नियर एम्पोरियम मॉल यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि बहुत ज्यादा आबादी है, ठीक है।
और वो किस तरह के बनी हुई है, छोटी छोटी उन्होंने ना घर बनाए हुए हैं। अगर आप लोग लाहौर से, आप लोगों में से कोई है तो उसको समझ आ रहा होगा, मॉल के पास बहुत ज्यादा इस तरह के उन्होंने बनाए हुए हैं। सो दीज आर बेसिकली शैंटी टाउन्स वेयर सो मेनी पीपल आर लिविंग near mall. Why? Because they will be having employment opportunities which will be near, और वो चीज उनको जो है वो दूर जाकर अवेल नहीं करनी पड़ेगी. सो हेल्थ एंड सैनिटेशन गॉट अफेक्टेड बैडली ड्यू टू दिस. व्हाई? बिकॉज जब आप शेंटी टाउन्स में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर सैनिटेशन का कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, और जब सैनिटेशन का प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है वो बीमारियां और ये चीजें फैलना शुरू हो जाएंगी. देन हीरोज ऑफ इंडस्ट्री. अब हुआ क्या कि वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज दैट कि कुछ लोग ब्लैक मनी और इन चीजों के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग एंड मेकिंग मनी और वो सारा स्टफ. उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है यूएस हिस्ट्री के अंदर जिसको आप लोग रॉबर बैरन कहते हैं. रॉबर बैरन इज नॉट अ पर्सन. एक चीज आप लोग याद रखिएगा, यूजुअली लोग इसको रॉबर बैरन किसी इंसान को समझ लेते हैं. एंड सीएसएस का जो पैनल है, दे पीपल आर सो मच कनिंग, और वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं कि हु वाज रॉबर बैरन. तो आप वहां पर ना आए बाएं शाइन लगाना शुरू कर देते हैं कि जी हाँ वो एक बंदा था, ये है वो है. दिस इज नॉट द केस. रॉबर बैरन इज एक्चुअली अ टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर people at that time who were involved in industrial kind of stuff, who were involved in business activities and business deals, and they were actually making money by neglecting the very rights of poor people. लेबर क्लास उन लोगों के राइट्स को इग्नोर करते थे ये लोग, उन लोगों को प्रॉपर उजरत उनकी नहीं देते थे, और होता क्या था कि खुद ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने में लगे होते थे. सो दिस इज द वेरी टर्म that was used for those people who were actually making money by neglecting the role of poor class or labor class. So the term robber baron was used for them. Many unethical businessmen also emerged during this time, और बहुत से unethical किस्म के acts भी इस time पर देखने को मिले. Then comes impersonalization of labor. No sympathetic or emotional relation was there between master and the servant. You people must have noticed कि अगर आप पिछले अपने ही जमाने में अगर आप लोग थोड़े अरसा पीछे चले जाएं तो आपने नोटिस किया होगा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशन होता था दैट वाज वेरी स्मूथ, और लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे अपने लेबर क्लास की, बहुत ज्यादा परवाह करते थे उनकी. इनफैक्ट अभी भी ऐसे लोग मौजूद होंगे. आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया से मोरालिटी खत्म हो गई है, बट ये कम हो गई है बहुत ज्यादा. सो एट दैट टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज देयर, व्हेन पीपल वर अर्निंग मोर एंड मोर मनी, सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि यहाँ पर पैसा जो है वो ज्यादा होता जा रहा है और इखलाकियात जो हैं वो कम होती जा रही हैं. करंट सोसाइटी के अंदर भी अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो आप लोग देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि करंट सोसाइटी में भी क्या हो रहा है, इखलाकियात जो हैं वो कम होती जा रही हैं और लोगों का पैसा कमाने का रुझान जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है. Then, no sympathetic or emotional relation was there between master and the servant. This stage of industrialization created heartlessness among people. Again, वही चीज कि जब आप पैसा कमाने की रेस में लग जाते हैं फिर आप बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं. वो आपके रिलेशंस हो सकते हैं, वो आपके बिलव्ड वंस हो सकते हैं, वो बहुत कुछ हो सकता है जो आप पीछे छोड़ देते हैं. राइट? सो वो किस लिए आप करते हैं ये सारा कुछ? In order to earn money, and that was age of industrialization. So people were busy in earning more and more money. They were least concerned about the emotions and sentiments of other people, be it labor class, be it their family or anything like that. So then comes trust system. Again trust system भी आ गया बीच में. कैसे? अब आप यहाँ पर देखेंगे मोनोपोली वॉज देयर. मोनोपोली क्या होता है कि एक ही टाइम पर जब बहुत ज्यादा डील्स, एक ही बिजनेस मैन जो है जब 2 से 3 बिजनेसेस कर रहा होता है, या एक ही इंसान जब 5 से 6 एक्टिविटीज के अंदर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होता है. इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी आप लोग पॉलिटिशियन से ले सकते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि वो जो नाम क्या है उसका, मिफ्ता इस्माइल, हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, और वो इंसान जो है वो क्या था कि उसकी कई फैक्ट्रीज जो हैं वो आपको सुनने को मिलती हैं, जिसमें सबसे कॉमन ये जो बच्चे कोकोमो खाते हैं इसकी फैक्ट्री है. प्लीज एक सेकेंड रुकिएगा. ओके.
उसके बाद जी मैंने आपको मोनोपोली बताया, तो मोनोपोली हम इसको कहते हैं। आप लोग अक्सर डॉन के कुछ आर्टिकल्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर ये वर्ड पढ़ते होंगे, आप लोगों को मे बी ना इसके बारे में पता हो या मे भी पता हो। सो मोनोपोली इज दैट। उसके बाद वन बिजनेसमैन वाज डूइंग सो मेनी वर्क साइमल्टेनियसली, और इस चीज ने क्या किया, इस चीज ने भी उसको बहुत ज्यादा हार्टलेस बनाया, और इस चीज ने भी अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट था कि लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एक लस्ट आ चुका था कि हम एक ही टाइम पर बहुत कुछ जो है वो करें। Then women's status recognition. This is another important point that you can count in impacts of industrialization. Industrialization का एक बड़ा impact ये हुआ कि खवातीन को अपने हकूक का एहसास होना शुरू हो गया। जिस टाइम पर इंडस्ट्री इतने हाइप पर थी तो औरतें ये चीज महसूस करना शुरू हो गई कि भाई जब इतना ज्यादा मर्दों को लेबर क्लास के अंदर इतने वेजेस मिल रहे हैं और इतनी ज्यादा हाइप मिल रही है, तो व्हाई नॉट अस। सो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, जिसको आप नाउ भी बोलते हैं, इट वाज फॉर्म्ड इन 1876. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेंडर स्टडीज सेशन अलोंग विद करंट अफेयर्स। उसमें ये बड़ी डिटेल में है जेंडर स्टडीज के अंदर। सो यूएस हिस्ट्री में जस्ट आपने इसको इतना ही पढ़ना है। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ आल्सो ब्रॉट अटेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट दैट वुमेन शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। जब आप लोग जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो आपका सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है जो मैं करवाती होती हूँ स्टूडेंट्स को, उसके अंदर आप लोग ये सारी डिटेल पढ़े होंगे। बट सिंस इट इज यूएस हिस्ट्री, यू पीपल जस्ट नीड टू टच दिस पॉइंट सिंस इट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर मेन टॉपिक विच इज impacts of industrialization. So now let's just move to the next point, that is child labor. Again, an impact of industrialization was that is child labor. People were of the view that instead of sending their children to schools, it is better to send them for work in order to make money from industry. So child labor का जो concept है ये भी आप कह सकते हैं कि आपके impacts of industrialization का एक part है. So industry also promoted child labor. People with poor background thought to send their children to industries for money. So this is how you can say that industrialization was impacting the overall, social setup in a worse manner. Wait, please. Okay. Now political conspiracies were also there. As you people know कि जैसे जैसे पैसा सर्कुलेट करता है सोसाइटी के अंदर तो पॉलिटिशियंस को मसले शुरू हो जाते हैं. With industrial growth, political conspiracy was also there. The late 19th and early 20th century saw the rise of industrial magnates. मैग्नेट का वर्ड जो है वो, वैसे तो मैग्नेट आप वो मकनातीस को बोलते हैं, बट मैग्नेट जो है या टाइकून जो है ये इंडस्ट्रियल सेटअप में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं इनके लिए भी यूज किया जाता है. सो आप इंडस्ट्रियल मैग्नेट का वर्ड उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं. So the rise of industrial magnates like John David Rockefeller, ये जो D है यहाँ पे ये David है, John David Rockefeller and Andrew Carnegie was there. इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा commonly लिया जाता है और इस टाइम पर जो है they were politicians and they were involved in industrial sector as well. Then their vast wealth led to conspiracy theories also. इनकी जो wealth थी और इनका जो सारा setup था, it led to conspiracy theories as well. Then robber barons, again वही चीज, robber barons manipulated markets and politicians also. इस तरह के जो लोग थे robber barons जो थे, they manipulated markets, इन्होंने markets को manipulate किया और काफी ज्यादा politicians को भी इस चीज पर उकसाया कि they should go for industrialization or they should invest in industry in order to double their wealth. Then we have family size shortened. Family का जो size था जी वो short हो चुका था. With the growth of industry, family size got shortened. People started focusing on luxuries rather than family and relationships. Again वही चीज कि लोग इतना ज्यादा busy हो गए थे that they were unable to give time to their families, right? And this actually resulted in family size shortage of family size, right? So ji, this was all about today. I was actually willing to teach you progressivism as well since time is short, and we will be talking about progressivism and Richard Nixon tomorrow. So if you people are enrolled in IR class, then I'll see you there. However, take very good care of yourself. You will be getting the recordings
as well. Allah Hafiz.